اسلام نے تو جو ہے 4 شادیوں کا حق دے دیا ہوا ہے، لیکن ہم یہ چیز بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ریلیشن ہے میاں اور بیوی کا جس میں اگر بات دوسری شادی کی جانب بڑھتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائف کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، جھگڑے بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے ہمیں 4 شادیوں کا حق دیا ہوا ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ کڑی شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو بیلنس کر کے چلنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، نیڈ جو ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ حال ہی میں پاکستانی اداکارہ ہیرا سومرو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر کافی گردش میں رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، ان کو مینٹلی، ایموشنلی اور فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ چیز میٹر نہیں کر رہی ہوتی۔ ان کے لیے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مرد جو ہے وہ بآسانی 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے اور ان کو اس بات سے جو ہے وہ کوئی بھی گلہ نہیں ہوگا اگر ان کے جو شوہر ہیں وہ 4 شادیاں کر لیتے ہیں، ان کیس کہ اگر ان کو مینٹلی اور فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کی جانب سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے جو ایسے اداکار ہیں جو اپنے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن کو آپ پسند کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ ان کو آئیڈیل مان رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس بھی لیتے ہیں یا اس پہ جو ہے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میری فیوریٹ ایکٹریسز ہیں، یا کسی ایسے انفلوئنسر نے ایسی بات کر لیا، کسی بہت معروف شخصیت نے کوئی بات کی ہوتی ہے تو وہ گردش میں بھی رہتی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ فرزانہ صاحبہ، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو جی۔ یہ بتائیے گا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے، لیکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ یہ قرآن کی جو ایک تشریح، جو ایک اس کو کہتے ہیں کہ بہت پیٹریارکل انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے، کہ اکثر آپ دیکھیں کہ قرآن کے جو ترجمے ہیں، تفسیر ہے، وہ ان مرد حضرات نے لکھی ہیں۔ اگر آپ فیمنسٹ انٹرپریٹیشن آف قرآن دیکھیں تو ایکچولی 4 شادیوں کی اسلام میں ممانعت ہے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں اگر آپ انصاف کر سکیں، اور اگلی ہی آیت میں یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک کانٹیکس تھا اس وقت سعودی، اس وقت مطلب اسلام میں، اور جب کہ بہت زیادہ جنگیں ہو رہی تھی، مردوں کی کمی تھی، اور اس زمانے میں یہ ایک آیت جو کہ اس چیز سے اس کو مشروط کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ انصاف کریں، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے مسلمان معاشروں میں کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ تشریح ہی غلط ہے۔ یہ اگر آپ مسلم ویمن اسکالرز جو ہیں، اگر ان کی تشریح پڑھیں تو وہ اس چیز پہ زور دیتی ہیں کہ آگے جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اس میں اصل میں اس چیز کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ باقی دیکھیں، یہ جو ظاہر خواتین خود بھی جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے کافی نابلد ہوتی ہیں، اور جو انٹرپریٹیشن ہمیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی پدر شاہانہ سوچ کے ساتھ تشریحات قرآن کی بھی کی گئی ہیں، تو اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری بات ہے کہ ایک تو ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور عربی زبان جو ہے اس کو سیکھیں، اور پھر خود اس کا ترجمے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں تو اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ یہ انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے جو ہے فطرتاً، جو آپ دیکھیں کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ایک مرد جو ہے، آپ کا شوہر جو ہے وہ 4 عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، اور عورت جو ہے وہ خوش رہ سکتی ہے۔ فرزانہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ہم نے شادی کی ہم بات کر رہے تھے اور رشتوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ تو بیلنس کرنا ہی مشکل ہے، کیونکہ ایک تو خواتین کی آپس میں کبھی بھی نہیں بننے والی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین ہر چیز شیئر کر سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو نہیں شیئر کر سکتی۔ تو پھر یہ کانسیپٹ، اس کو کس طرح سے جو ہم پروموٹ کریں، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی
सबसे बड़ी बात मैंने जो पहले भी बात की कि तो ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ तो एक बीवी के हकूक भी मर्द पूरे नहीं कर रहा है। आप देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में टॉप कंट्रीज में है जहाँ पे हर तीसरी औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। और ये हम नहीं कह रहे कि आप जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का अपना जो नेशनल डेटाबेस है, आप हाउस होल्ड सर्वे उठा के देखें, वो खुद कह रहे हैं कि हर तीसरी औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। तो यहाँ तो एक बीवी के हकूक पूरे नहीं किए जा रहे, तो आप यहाँ 4 शादियों की बात करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे भी 2 बीवियां, खास तौर पे हम देखते हैं कि सिंध में और देही इलाकों में जहाँ 2 बीवियां रखी हुई हैं, वहाँ औरतों की जिंदगी आजाद बनी हुई है। और फिर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे सिर्फ 2 बीवियां नहीं रख सकते, मतलब कानूनी तौर पे वहाँ पे मुमानत है। तो ये पाकिस्तान में मतलब ये जो मुल्ला हजरात है, खास तौर पे जो हमारा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जिसमें आप देखें कि हमेशा अपॉइंटमेंट्स जो होती है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं और ऐसे लोगों की होती हैं जिनको इस्लाम की अलिफ बे का पता नहीं होता, और वो मौलवी हजरात जो है वो अपने आप को जो है वो इस्लाम के आलिम बन के और वो इस तरह के फैसले वहां से भी आते हैं। और जिसकी वजह से आम जो लोग हैं पाकिस्तान में, क्योंकि तालीम की कमी है, हमने इन्वेस्ट तो किया नहीं है लोगों की तालीम और तरबियत पर, तो उसकी वजह से लोग मर्दों को ये चीजें बड़ी सूट करती हैं जो एक प्रचार इंटरप्रिटेशन है, और वो जो एक पिदरशाहाना जो एक कुरान और इस्लाम के हवाले से इंटरप्रिटेशन है, ये तो पैगंबरों का काम है कि वो इंसाफ कर सके, इंसान के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। फरजाना बारी साहब, आपने बात की कि अब तो एक शादी भी जो करता है ना मर्द, उसके भी हकूक पूरे नहीं होते। हम ये भी देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हम ये भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इतने मसाइल हो गए हैं। ये एक खूबसूरत रिश्ता है और लोगों को, हमारे यहाँ ये भी मसला है कि जब हम शादी का एक खूबसूरत रिश्ता जोड़ रहे होते हैं तो हम लड़की को तो समझा के भेज रहे होते हैं कि आपने वहाँ सबका ख्याल रखना है, आपने सबको अपनाना है, आपने एडजस्ट करना है, आपका काम है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेल को कौन गाइड करेगा? उसको तो कोई गाइड नहीं कर रहा होता कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। घर के बड़े भी उसको नहीं समझा रहे होते। खवातीन में ये होता है कि जो नानियां दादियां होती हैं वो भी लड़कियों को समझा रही होती हैं कि बेटा वो तुम्हारा घर है, तुमने एडजस्ट करना है। इस तरह की चीजें तो हम बता रहे होते हैं। फिर मेल हजरात जो है, मर्द जो है, उनको कोई क्यों नहीं समझा रहा होता? ये भी बहुत इस चीज की कमी है कि आप उसको समझाएं कि अब तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने उसको अच्छे से ट्रीट करना है, तुमने उसको वक्त देना है, तुमने अगर उसको उसकी इस्लाह करनी है तो उसको अलग से इस्लाह करनी है। ये तमाम चीजें जो है मर्द हजरात को भी तो समझानी चाहिए ना, ताकि जो रिश्ता है वो मजबूत बने। बिल्कुल सही कह रही है ना, लेकिन यही तो नहीं हो रहा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो औरत को अभी भी मर्द की जाती मलकियत तस्वुर किया जाता है। अब ये कहा जाता है कि मर्द तुम्हारा मिजाजी खुदा है, वो तुम्हारे साथ अच्छा बुरा करे लेकिन तुमने आगे से सर नहीं उठाना और जो है उसकी खिदमत गुजार। तो औरत तो शादी के रिश्ते में जाती है एक खिदमत गुजार के तौर पे है, और एक हाकिम और महकूम का रिश्ता बना हुआ है। शादी का रिश्ता, बराबरी का रिश्ता तो हमारे मुल्क में है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो वही जिस तरह आपने बात की कि जब शादी के रिश्ते में जाती है औरत, तो ये तस्वीर किया जाता है कि वो खिदमत गुजारी के लिए जाएगी, और अब मर्द जो होगा वो उसका मिजाजी खुदा होगा, वो उसका खुद उसको यानी कि उसके जो भी हकूक जी नहीं, मतलब फराइज तो मैं नहीं मतलब कहना चाह रही, मतलब ये है कि बेसिकली ये कहा जाता है कि अब वो अपनी जिंदगी जो है, जो मर्द का जिससे शादी हो रही है, अपने शौहर के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, उसके माँ बाप की खिदमत करेगी, उसके बच्चों की खिदमत करेगी, उसकी खिदमत करेगी। यानी कि जो तस्वुर है वो ये है कि औरत शादी के रिश्ते में खिदमत गुजार है, और मर्द अगर कफालत का काम उसके सुपुर्द किया भी जाता है तो वो कफालत अगर करता है तो वो उसमें एक बदतरी का अंसर शामिल है। ये नहीं है कि अगर औरत घर संभाल रही है और मर्द कफालत कर रहा है तो दोनों एक के हकूक बराबर है और दोनों
का काम जो है वो उसकी अहमियत एक जैसी है, बल्कि वो ये समझा जाता है कि जो कमा के ला रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, और जो औरत घर संभाल रही है, बच्चे पाल रही है, अपने बच्चे उसके खानदान को, उसके माँ बाप को संभाल रही है, वो काम जो है क्योंकि वो बगैर उजरत घरेलू मशक्कत कर रही है, उसको उजरत नहीं मिलती, तो इसलिए वो काम जो है वो मर्द के हवाले से इसको कमतर समझा जाता है। तो देखिए ये एक ओवरऑल जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है माशरे के अंदर, वो जब तक चेंज नहीं होगा, औरत को जब तक आप एक इंसान तस्वुर नहीं करेंगे, औरत जो है वो उसको सिर्फ आप किसी मर्द के रिश्तों के हवाले से आप उसको देखेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर उसके साथ यही सलूक होता रहेगा ना जो हो रहा है। बिल्कुल फरजाना बारी साहब, एक और चेंज जो है वो आना शुरू हो गया है, और जो थोड़ा थोड़ा करके नजर आ रहा है, वो खवातीन जिनको उनके हस्बैंड्स इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं या इक्वल राइट्स नहीं दे रहे होते या उनका ख्याल नहीं रख पा रहे होते, तो वो खवातीन ये कहती हैं कि मैं अपने बेटे की जो है तरबियत ऐसी करूंगी कि आने वाली जो होगी ना वो उसके साथ सुख चैन से रह सके। और ये चीज़ हमने कुछ एड्स के थ्रू भी देखी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी देखी, तो ये बहुत ज़्यादा इसको अब प्रमोट किया जा रहा है। और ये जनरेशन जो है, अगर अब के मर्द हजरात ऐसे हैं, तो आज की जो जनरेशन की जो खवातीन हैं वो अपनी नस्लों की इस तरह से तरबियत करें कि मर्द हजरात को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी बीवी की टेक केयर कैसे करनी है, सिर्फ बीवी की नहीं, एक खातून की इज्जत, उसका ख्याल, उसकी केयर करना वो किस तरह से होगा, ये मुमकिन करना है हमने अपनी तरबियत के थ्रू। जो आने वाली जनरेशन है उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब करना है हमने। कि जो खुद औरतें हैं वो भी तो उसी पीदरशाही सोच का शिकार है ना। औरतें जो है अगर उनके अंदर सिंफी शऊर नहीं होगा, एक फेमिनिस्ट थिंकिंग नहीं होगी, तो फिर वो भी यही करेंगी कि वो छोटा भाई है तो वो बहन उसकी खिदमत करेगी, वो उसके लिए उठेगी, उसको पानी पिलाएगी, उसी के साथ उसको उसका प्रोटेक्टर बना के बाहर भेजेंगे कि अच्छा अगर 16 साल की या 20 साल की बेटी बाहर जा रही है तो उसके साथ 8 साल का बच्चा जो है वो उसका प्रोटेक्टर बना के उसको भेजा जाता है। तो बात ये है कि जब तक औरतों की अपने अंदर सिंफी शऊर नहीं होगा, क्योंकि आपने खवातीन में अगर आप देखें कि लिटरेसी रेट इतना कम है, और फिर उसके बाद ये है कि औरतों का एक्सपोजर नहीं है, फिर उनको जिस तरह से सिखाया जाता है वो फिर अक्सर उसी पिदरशाहाना सोच को लेकर वो अपने घरों में बच्चों के साथ जो मेल चिल्ड्रन है उनको बेहतर सलूक करेंगी, उनको बेहतर खाना देंगी, उनको बेहतर ट्रीट करेंगी उसकी निस्बत, बच्चियों की निस्बत। तो जरूरी बात ये है कि जो सिंफी शऊर है उसको प्रमोट किया जाए, जिस तरह भी आपने कहा कि कुछ एडवर्टीजमेंट में जो है अब थोड़ी सी चेंज आ रही है, ज़ाहिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी थोड़ी सी चेंज तब्दीली आ रही है, लेकिन ये तब्दीली बहुत स्लो है उसके मुकाबले में कि जो एक डोमिनेंट थिंकिंग है पाकिस्तान के अंदर और मीडिया के अंदर और ड्रामों के अंदर, वो यही है कि औरत जो है वो मर्द से कमतर है। औरत का मर्द से कमतरी का तस्वुर जो है वो आप जो है आपका तलीमी निज़ाम भी उसको प्रमोट कर रहा है, आपका लॉ भी उसको प्रमोट कर रहा है, आपका मीडिया भी उसको प्रमोट कर रहा है, और बहुत हद तक आपका जो मजहब के ऊपर जो मुल्ला हजरात का जो अजारादारी है वो भी उसको प्रमोट कर रहा है। तो ये जो सिंफी शऊर है ये पैदा करना माशरे, जब तक ये सिंफी शऊर हम पैदा नहीं करेंगे तब तक हम औरतों और मर्दों को और बच्चियों और बच्चों को इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, उनको मुसावी मौके नहीं दे पाएंगे जिंदगी। ठीक है, समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। फरजाना साहिबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये जो रिश्ता है इसमें हमेशा जो है दो लोगों को इक्वली ट्रीट करके एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना होता है, और हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा दुश्वारी है, कितने ज़्यादा मसाइल हैं। तो करना यह है कि हमने अपनी जनरेशंस में ये चीज़ प्रमोट करनी है कि खातून की इज्जत किस तरह से की जाए, उसको इक्वली ट्रीट किया कैसे जाए, और मर्द और औरत जो है वो दोनों किस तरह से एक साथ जुड़कर जो है अपने तमाम लाइफ जो है अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इसके अलावा आज के शो में हमने बात की है, क्योंकि आज डायबिटीज़ डे